નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, શ્રી એસએન વિદ્યાલય દ્વારા સંચાલિત ઈ લર્નિંગ કાર્યક્રમમાં હું ફરી પાછું આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ગયા લેક્ચરની અંદર આપણે જે છે એ વાક્ય અને વાક્યના પ્રકાર વિશે ચર્ચા કરી હતી. એમાંથી આપણે 4 જ પ્રકાર વિશે અભ્યાસ કર્યો હતો. બીજા 4 પ્રકાર જે છે એ આપણે આ વિડીયોની અંદર જોવાના છે. સૌથી પહેલાં જે છે એ ફરી પાછું આપણે વાક્ય શું છે એ સમજી લઈએ. વાક્ય એટલે સાર્થક શબ્દોનો સમૂહ. સાર્થક મતલબ કે જે શબ્દો દ્વારા આપણને કોઈ અર્થ મળતો હોય તેને આપણે સાર્થક કહીએ છીએ. વાક્યની અંદર ઘણા બધા શબ્દો હોય પણ એની અંદરથી આપણને જો કોઈ અર્થ જ ના મળે તો એ વાક્ય કઈ રીતે કહી શકાય. એટલે વાક્યનો મિનિંગ જે છે એ આપણે સમજી ગયા હતા કે વાક્ય એટલે સાર્થક શબ્દોનો સમૂહ. અને એ વાક્ય જે છે એના આધારે તેનું જે વિવેચન કરવામાં આવે છે તેના જે છે 2 પ્રકારો પડે છે. એક અર્થના આધાર ઉપર વાક્યના પ્રકાર અને રચનાના આધાર ઉપર વાક્યના પ્રકાર. આપણે જોયું હતું એમાં અર્થના આધાર ઉપર વાક્યના પ્રકાર વિશે આપણે વાતચીત કરતા હતા. તો અહીંયા જે છે ગયા લેક્ચરની અંદર આપણે જોયું હતું અર્થના આધાર ઉપર 4 પ્રકારો વિશે અભ્યાસ કર્યો હતો. સૌથી પહેલાં જે છે એ વિધાનવાચક વાક્યો, નિષેધવાચક વાક્યો, પ્રશ્નવાચક વાક્યો અને ઈચ્છાવાચક વાક્યો. એ 4 પ્રકારના જે છે આપણે પ્રકાર વિશે ઊંડો અભ્યાસ કર્યો હતો. આજે જે છે એના બીજા જે 4 પ્રકાર છે તેનો આપણે અભ્યાસ કરીશું. અહીંયા અર્થને આધાર પર જે છે વાક્યના 8 પ્રકાર પડે છે. અર્થના આધાર ઉપર કેટલા પ્રકાર પડે છે? 8 પ્રકારો પડે છે. તો એમાંથી આપણે 4 વિશે અભ્યાસ કર્યો કે જેમાં વિધાનવાચક એટલે કે કોઈ જે છે એ ક્રિયા થઈ હોય એવો હકીકતમાં નિર્દેશ કરે છે. પછી પ્રશ્નવાચક વાક્યની અંદર પ્રશ્ન જે છે એ દ્વારા જે છે એ કોઈ પણ વાત જે છે રજૂ કરવામાં આવી હોય, પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો હોય તો એ પ્રશ્નવાચક વાક્ય. ઈચ્છાવાચક વાક્યની અંદર જે છે એ વક્તાની ઈચ્છા દર્શાવી હોય. વક્તાની ઈચ્છા જે છે ક્યારેક જે છે એ શુભકામનાની પણ હોઈ શકે, તો ક્યારેક વક્તાની ઈચ્છા જે છે આશીર્વાદ રૂપે હોઈ શકે, ક્યારેક અભિશાપ રૂપે પણ હોઈ શકે છે. અને જે છે એ આપણે 4 જે છે એનો અભ્યાસ કર્યો હતો. જે છે એમાંથી આપણે હવે બીજા 4 જે છે એના વિશે આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે. એમાંનું જે પહેલું છે તે છે, ચોથું છે વિસ્મયાદી વાચક વાક્ય. 5મું છે સંદેહવાચક વાક્યો. 6થું છે સંકેતવાચક વાક્યો. અને 7મું છે આજ્ઞાવાચક વાક્યો. 5, 6, 7 और 8 आज्ञावाचक वाक्य. तो आज हम इन 4 का अभ्यास करेंगे. अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार है. अगले वीडियो में हमने 4 वाक्यों के बारे में पढ़ा था. उसके बाद जो अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार है उसमें सबसे पहला है 5वां है विस्मयादिवाचक, 6ठा है संदेहवाचक, 7वां है संकेतवाचक और 8वां है आज्ञावाचक. तो सबसे पहले विस्मयादिवाचक वाक्य का क्या मतलब है? विस्मय यानी आश्चर्य, जिसमें किसी भी आश्चर्य, हर्ष, घृणा, शोक आदि का भाव जो है वह मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? विस्मयादिवाचक वाक्य. उसे आश्चर्य भी कह सकते हैं, आश्चर्यवाचक वाक्य भी कह सकते हैं. इसमें हर्ष, घृणा, नफरत,
विस्मय आदि भाव जो है वह रखे जाते हैं। जिस वाक्य के द्वारा हमें हर्ष, घृणा, नफरत आदि भाव जो है उसका बोध होता है, उसे हम विस्मय या आश्चर्यवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि अरे, वाह, ओ, छी आदि जो शब्द है वह किसी जो है वह हर्ष, घृणा, नफरत आदि भाव को अभिव्यक्त करते हैं। इन शब्दों अरे, वाह, ओ, छी आदि शब्द का कोई मतलब नहीं होता। जैसे कि हम कभी कभी बोलते समय मन के भाव जो है प्रकट करते हैं, ओ, वाह, अरे, तो ऐसे जो भाव है वह हमें आश्चर्य व्यक्त करने के लिए बहुत जरूरी होता है। उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, लेकिन हमारे मुंह से ऐसे जो भाव जो है वह निकल जाते हैं। ऐसे वाक्य में ऐसे वाक्य के द्वारा हर्ष, घृणा, नफरत आदि भाव हम अभिव्यक्त कर सकते हैं। जैसे ओ, उसके बाद हमें उद्गार चिन्ह लगाना है। ओ, मैं एकदम भूल ही गई। अरे, वाह, अरे, वाह, कितना सुंदर चित्र बनाया। अरे वाह, कितना सुंदर चित्र बनाया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, नफरत आदि भाव व्यक्त करने के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उससे हम विस्मय आदि वाचक वाक्य कहते हैं। अरे, ओ, मैं एकदम भूल ही गई। तो ओ, ये जो है हमारे मन के भाव है, इसमें से हमें विस्मय जो है उसका पता चलता है। अरे वाह, कितना सुंदर चित्र बनाया। अरे, तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? नहीं कहा, सॉरी, तुमने मुझे सच क्यों नहीं कहा? तो यहाँ पर अरे, ओ, वाह आदि जो है वाक्य जो है वह विस्मय आदि वाचक वाक्य कहा जाता है। उसे आश्चर्यवाचक वाक्य भी कहते हैं। इन जो शब्द होते हैं उनका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन हम बोलते हैं जब हम बहुत भावुक हो जाते हैं तब हमारे मुंह से ऐसे शब्द अपने आप ही निकल जाते हैं। इसलिए हर्ष, घृणा, नफरत, विस्मय ऐसे भाव को अभिव्यक्त करने के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं और वाक्य में ऐसे शब्द आते हैं तो वह विस्मय आदि वाचक वाक्य कहते हैं, जिसमें से हमें कुछ जो है हमें आश्चर्य जो है वह अभिव्यक्त करने होते हैं। इसके द्वारा जो है हमें विस्मय का पता चलता है। वाक्य में जो कहने का भाव है वह हम अच्छी तरह से समझ जाते हैं। तो विस्मय आदि वाचक आपको अच्छी तरह से याद रखना है। विस्मय यानी आश्चर्य, जिसमें मन के भाव अभिव्यक्त किए जाते हैं। फिर है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य दोनों में आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। संदेह यानी किसी कार्य के होने में संदेह या अनुमान लगाना
पड़ता है। संदेहवाचक में क्या होता है कि कार्य के होने में संदेह दर्शाया जाता है या फिर अनुमान लगाया जाता है। वो जो है वाक्य में संदेह यानी कि हम किसी बात को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं तो हम उसका अनुमान लगा लेते हैं, ऐसा हो सकता है। ऐसा अनुमान जो लगाया जाता है उससे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। संदेह यानी किसी कार्य के होने में या करने में संदेह या अनुमान लगाया जाता है, उससे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मुझे लगता है अब तक वह सो गया होगा। मुझे लगता है अब तक वह सो गया होगा। तो यहाँ अनुमान लगाया है। वह यानी एक व्यक्ति जो है वह सोया नहीं है, उसे पता नहीं है, लेकिन क्या उसका अनुमान लगाया जाता है। मुझे लगता है यानी कि व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि वह सो गया होगा, बहुत देर हो गई है, रात के कई घंटे बीत गए हैं, रात हो गई है, इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि मुझे लगता है अब तक तो वह उसका मित्र जो है वह सो गया होगा। तो यहाँ जो अनुमान लगाया जाता है उससे हम क्या कहते हैं, संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। किसी कार्य के होने में या करने में अनुमान लगाया जाता है, संदेह दर्शाया जाता है, उससे हम क्या कहते हैं, संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि लगता है आज बारिश होगी। लगता है आज बारिश होगी। बादलों को देखकर हम कह सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, काले काले बादल छा गए होंगे, बिजली चमकती होगी, तो हम अपने आप ही अनुमान लगा लेते हैं, लगता है आज बारिश होगी। बारिश हुई नहीं है, लेकिन इस बात का कार्य के होने में हमें क्या है, संदेह या अनुमान लगाना होता है। तो जब कार्य के होने में हम अनुमान लगाते हैं तब उससे क्या कहते हैं, संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मुझे लगता है वह लड़का मुझे जानता है। मुझे लगता है वह लड़का मुझे जानता है। वह जानता नहीं है, लेकिन ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। किसी कार्य के होने में या करने में संदेह दर्शाया जाता है तो उससे हम क्या कहते हैं, संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। अगला जो है हमने देखा था विस्मयादिवाचक वाक्य, पांचवा प्रकार, और छठा प्रकार है संदेहवाचक वाक्य। और संदेहवाचक वाक्य में क्या है कि किसी कार्य के होने में या करने में हमें अनुमान लगाना होता है, लगता है, शायद, ऐसे शब्द जो हैं वह संदेहवाचक वाक्यों में आते हैं। अगला है संकेतवाचक वाक्य। संदेहवाचक और संकेतवाचक, आप दोनों में फर्क देख लीजिएगा, इसलिए आपको क्या पता चल जाएगा कि इसमें क्या है, इसमें संदेह है और इसमें संकेत है, इसमें संदेह है और इसमें संकेत है। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। किसी क्रिया के
क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो या पहली क्रिया होगी तभी दूसरी क्रिया होगी। एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो और पहली क्रिया होगी तभी दूसरी क्रिया होगी। एक क्रिया का संकेत दूसरी क्रिया से मिलता हो या फिर पहली क्रिया का संकेत दूसरी क्रिया पर निर्भर हो तो संकेतवाचक वाक्य बनता है। एक क्रिया तभी होगी जब पहली क्रिया होगी तभी दूसरी क्रिया होगी, ऐसा जो बोध देते हैं ऐसे वाक्य को हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है और पहली क्रिया होगी तभी दूसरी क्रिया होगी, ऐसा बोध देने वाले जो वाक्य होते हैं उससे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। संकेत यानी एक का क्रिया का संकेत हमें दूसरी क्रिया से मिलता हो, जैसे कि यदि मेहनत करोगे तभी सफलता मिलेगी। यदि बारिश होगी तभी फसल अच्छी होगी। यदि बारिश कम हुई तो घूमने जाएंगे। तो यहाँ पर अब देखिए, एक क्रिया होगी तभी दूसरी क्रिया होगी। जैसे यदि मेहनत करोगे तभी सफलता मिलेगी, ये पहला वाक्य है और ये दूसरा वाक्य। तो एक क्रिया का होना, एक क्रिया होगी तभी दूसरी क्रिया होगी। यदि मेहनत करोगे तभी सफलता मिलेगी, यदि मेहनत नहीं करोगे तो सफलता भी नहीं मिलेगी। तो यहाँ एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। एक क्रिया होगी तभी दूसरी क्रिया बन पाएगी। जैसे यदि बारिश होगी तभी फसल अच्छी होगी, यदि बारिश नहीं होती तो फसल भी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि बारिश जो है उसके कारण ही फसल अच्छी होती है। तो यहाँ पर एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, एक का संकेत दूसरे से मिलता है। यहाँ पर पहली क्रिया होती है तभी दूसरी क्रिया बन पाती है। यदि बारिश होगी तभी हम फसल अच्छी होगी, यदि बारिश कम हुई, बहुत बारिश आ रही है और बारिश कम हुई तभी हम घूमने जाएंगे, यदि बारिश कम नहीं होती तो घूमने का काम भी नहीं हो पाता। यहाँ पर एक क्रिया जो है वह पहले बनेगी तभी उसकी दूसरी क्रिया भी बनेगी। तो एक क्रिया का संकेत दूसरी क्रिया से मिलता है। तो एक क्रिया होगी तभी दूसरी क्रिया होगी। तो यहाँ पर संकेतवाचक वाक्य, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। यदि पहली क्रिया हो जाती है तभी दूसरी क्रिया होती है। यदि बारिश होगी तभी तो फसल अच्छी होगी, यदि बारिश के अभाव में
हम देखें तो फसल अच्छी नहीं होगी, मेहनत नहीं करेंगे तो हम सफल भी नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर एक क्रिया का होना दूसरे क्रिया पर निर्भर होता है। ऐसा भाव प्रकट करने वाले वाक्य को हम क्या कहते हैं? संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। 8 प्रकार में से कोई भी एक प्रकार का वाक्य आपको पूछा जा सकता है 2 या 3 मार्क में। आपको लगेगा कि आप अकेले व्याकरण के ही पॉइंट ले रहे हैं, पाठ वाठ तो कुछ लेते नहीं हैं। तो ऐसा नहीं है। जो हमारी वार्षिक परीक्षा जो आएगी उसमें 20 से 25 मार्क का व्याकरण आता है। प्रश्न जो है हम पढ़कर भी अच्छे से उसका अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर व्याकरण जो है वह 20 या 25 गुणों का होता है, 20 या 25 गुणों का होता है। तो व्याकरण के जो ये 20-25 मार्क है उसमें से हमें एक भी मार्क जो है उसका कम मार्क नहीं करना है, सभी मार्क लेने हैं। इसलिए मैं ज़्यादा व्याकरण पर ही महत्व देने वाली हूँ, क्योंकि व्याकरण जो है हमें आगे जाके भी बहुत उपयोगी होता है और साथ ही कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी कई उसके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको व्याकरण का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना है। 2-3 बार वीडियो देखें और अभ्यास करें। न समझ में आए तो आप फिर से देख लीजिए, लेकिन व्याकरण का आपको अभ्यास जरूर करना है। और व्याकरण का पॉइंट समाप्त हो जाएगा तो मैं फिर पाठ आपको अच्छे से समझा दूंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप व्याकरण पे ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दीजिए। अगला है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य में क्या होता है कि किसी वक्ता के द्वारा आज्ञा दी जाती है। आज्ञा अनुमति या प्रार्थना का भाव होता है। वक्ता के द्वारा क्या दिया जाता है? आज्ञा। हम किसी को आदेश देते हैं, आज्ञा देते हैं कि तुम चलो यहाँ से चले जाओ, इधर बैठ जाओ, खड़े हो, तो ये क्या है? आज्ञा है। तो वक्ता के द्वारा किसी को आज्ञा दी जाती है, उससे हम क्या कहते हैं? आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि किसी वाक्य के द्वारा आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना, प्रार्थना का भाव, अभिव्यक्त, हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं? आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। आज्ञा यानी आप किसी को आदेश दे रहे हैं, ऐसा मान लीजिए। तो आज्ञा में क्या होता है कि एक तो आज्ञा होती है, अनुमति होती है, प्रार्थना होती है, प्रार्थना का भाव भी हो सकता है। जैसे हम उदाहरण के द्वारा देखेंगे कि भिस्ती को निकालो, कसाई को हाजिर करो। भिस्ती को निकालो, कसाई को हाजिर करो। तो यहाँ एक राजा जो है वह किसी सिपाही को आज्ञा दे रहा है कि इस भिस्ती को निकालो और कसाई को हाजिर करो। तो यहाँ आज्ञा का भाव हो गया। तो किसी भी वाक्य के द्वारा हमें आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना का भाव मिलता हो, उसे हम क्या कह सकते हैं? आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कृपया मेरी सहायता कीजिए, कृपया मेरी सहायता कीजिए। तो यहाँ भी आज्ञा ही है, लेकिन इसमें क्या है? प्रार्थना का भाव है। हम किसी से रूड वर्तन कर सकते हैं, किसी को हम गुस्से में आकर कह सकते हैं यहाँ से चले जाओ, तो ये
हमारा आज्ञा है, हमारी आज्ञा है। लेकिन कभी कभी हम काम निकालने के लिए कभी अच्छे शब्दों का प्रयोग भी करते हैं, जैसे कि कृपया मेरी सहायता कीजिए। तो सहायता करनी है तो वह एक आज्ञा ही है, लेकिन यहाँ भाव कैसा है, प्रार्थना का भाव है। जैसे कि कृपया आप मेरी सहायता कीजिए ना, आपको रास्ते में कोई साइकिल पंचर हो गया तो आपके पास पैसे नहीं है, तो आप किसी से कहते कृपया मेरी सहायता कीजिए ना। तो यहाँ पर क्या है, प्रार्थना का भाव है, प्रार्थना का भाव है, और प्रार्थना के द्वारा जो है आज्ञा दी जाती है। तो आज्ञावाचक वाक्य में क्या होता है कि किसी को आज्ञा दी जाती है, प्रार्थना की जाती है, अनुमति दी जाती है, तो यहाँ पर जो है वह आज्ञावाचक वाक्य बनता है। जैसे कि थोड़ी देर के लिए शांति रखिए। थोड़ी देर के लिए शांति रखिए, तो यहाँ भी आज्ञा का भाव है। बाजार में से आप 2 किलो चावल ले आओ, मेरे लिए एक कॉफ़ी ले आओ, मेरे लिए एक कॉफ़ी ले आओ। तो यहाँ भी आज्ञा का भाव है। भिस्ती को निकालो, कसाई को हाजिर करो, कृपया मेरी सहायता कीजिए, थोड़ी देर के लिए शांति रखिए, मेरे लिए कॉफ़ी ले आओ। तो ये सभी वाक्य जो है वक्ता के द्वारा बोले जाते हैं। वक्ता किसी को आज्ञा भी दे सकता है, वक्ता किसी को प्रार्थना भी कर सकता है। तो यहाँ जो है हम किसी को आज्ञा देते हैं, तो आज्ञा देने का भाव जिस वाक्य में हो उस वाक्य को हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार बनते हैं। 8 प्रकार को आपको अच्छी तरह से याद रखना है। उस वाक्य में आपको कभी भी 8 वाक्यों में से कोई भी एक वाक्य पूछा जा सकता है। अगले लेक्चर में हमने जो 4 प्रकार देखे थे, उसके अलावा विस्मय आदि वाचक, जिसमें हर्ष, शोक, तृष्णा आदि भाव अभिव्यक्त होते हैं। संदेहवाचक वाक्य में जो है वह किसी कार्य के होने में या करने में अनुमान लगाया जाता है या संदेह दर्शाया जाता है। संकेतवाचक वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। और आज्ञावाचक वाक्य में क्या होता है कि वक्ता के द्वारा किसी को आज्ञा दी जाती है। तो ऐसे जो वाक्य के अर्थ के आधार पर जो है 8 प्रकार बनते हैं, और 8 प्रकार का हमें अच्छी तरह से अभ्यास कर लेना है, ताकि हमें परीक्षा में कोई भी वाक्य पूछा जाए तो हमें सभी प्रकार के वाक्यों का प्रकार जो है वह पता होना चाहिए। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार हैं। हम कुछ उदाहरण देखेंगे, इसके द्वारा आपको पता चल जाएगा कि इस वाक्य में कौन सा जो है प्रकार है। सबसे पहला है, वहाँ पेड़ पौधे नहीं थे। वहाँ पेड़ पौधे नहीं थे। तो आपको पता होना चाहिए कि जहाँ कहीं भी ना और नहीं शब्द आए तो उसका प्रकार क्या हो जाएगा, निषेधवाचक। निषेधवाचक वाक्य। ना नहीं शब्द का प्रयोग हो तभी हमें पता चल जाना चाहिए कि यह एक निषेधवाचक वाक्य है। दूसरा देख लेते हैं, इस नगरी का राजा कौन है। तो यह वाक्य देखकर ही पता लग जाता है कि यहाँ पर इस नगरी का राजा कौन है। तो यह है प्रश्नवाचक वाक्य।
डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा था। डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा था। इस वाक्य को आप देखिए, डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा था, तो आप तुरंत समझ जाएंगे। कुछ लोग उसमें गलती भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है इस वाक्य का प्रकार है विधानवाचक वाक्य। आप इसका गलत मतलब निकाल सकते हैं, आप उसको आज्ञावाचक वाक्य में रख देंगे, क्योंकि ऐसा भाव आपको लगेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है, विधानवाचक वाक्य है। विधानवाचक वाक्य में क्या कहा गया था कि किसी कार्य के होने की हकीकत को दर्शाया जाता है। किसी एक हकीकत को दर्शाया जाता है। डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा था, इसमें किसी प्रश्न का भाव नहीं है, आश्चर्य का भाव नहीं है, नहीं आज्ञा का भाव है, केवल आराम करने के लिए कहा था। तो यह एक हकीकत है। हकीकत को जो दर्शाया जाता है उस वाक्य को हम क्या कहते हैं? विधानवाचक वाक्य कहते हैं। अगला वाक्य देख लेते हैं। गुरुजी आ जाए तो अच्छा है। गुरुजी आ जाए तो अच्छा है। तो यहाँ वक्ता जो है वह बोल रहा है गुरुजी आ जाए तो अच्छा है। तो वक्ता की इच्छा क्या है कि गुरुजी आ जाए तो अच्छा है। तो गुरुजी आने की बात किसको सूझ रही है? वह वक्ता को सूझ रही है। तो वक्ता की इच्छा, आकांक्षा, अपेक्षा, ऐसे भाव को अभिव्यक्त करने वाले वाक्य को हम क्या कहते हैं? इच्छावाचक वाक्य। अगला है राम वन में जाते हैं। राम वन में जाते हैं। तो राम वन में जाते हैं, यह एक विधान वाचक वाक्य है। अगला देख लेते हैं। शायद मुझे ही अहमदाबाद जाना होगा। शायद मुझे ही अहमदाबाद जाना होगा। तो यहाँ शायद शब्द आपको कहीं भी दिखाई दे, शायद मुझे ही अहमदाबाद जाना होगा, तो उसका क्या प्रकार बन जाएगा? संदेहवाचक वाक्य। किसी कार्य के होने में या करने में संदेह जताया जाता है, उससे हम क्या कहते हैं? संदेहवाचक वाक्य। शायद मुझे ही अहमदाबाद जाना होगा। अहमदाबाद गया नहीं है, लेकिन शायद कहाँ गया है? शायद यानी कि जाने में अनुमान लगाया गया है। तो शायद मुझे ही अहमदाबाद जाना होगा। अगला है बाजार में से 2 किलो चावल ले आओ। बाजार में से 2 किलो चावल ले आओ। तो यहाँ पर
बाजार में से 2 किलो चावल ले आओ, किसी को आज्ञा दे रहा है। आज्ञा यानी आज्ञावाचक वाक्य। तो इस प्रकार जो है वाक्यों के अर्थ के आधार पर 8 प्रकार बनते हैं। इस तरह से आपको परीक्षा में कोई भी वाक्य पूछा जाएगा, वाक्य को देखकर आपको बताना है कि इस वाक्य का कौन सा प्रकार है। तो वाक्य अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार हैं। 8 प्रकार के बारे में हमें पता होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि भाई यह आज्ञावाचक है या प्रश्नवाचक है, विस्मय आदिवाचक वाक्य है। तो इस प्रकार जो है वाक्य जो है वह सार्थक शब्द का समूह है और उसके अर्थ के आधार पर उसके 8 प्रकार बनते हैं। 8 प्रकार का हमें अच्छी तरह से अभ्यास करना है। तो यहाँ पर हमने 8 प्रकार की चर्चा की। अब हम अगले वीडियो में वाक्य के वाक्य का दूसरा प्रकार है जो रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहती हूँ।